Okay, good morning to all of you. Hope I'm audible, right? Yes, sir, audible, sir. Okay, ठीक है. New student, you all are most welcome in the class of fluid mechanics, right? I am going to take the classes of fluid mechanics. Myself, Manish Thakur. I am the assistant professor in mechanical engineering department, and I will teach you the fluid mechanics, right? ठीक है. और फ्लूइड मैकेनिक्स में अभी करीब करीब बहुत क्लासेस हो गए हैं, राइट? ठीक है. तो आप लोग को हर बार आने की जरूरत नहीं है. आई विल कवर द रिमेनिंग थिंग इन द अपकमिंग क्लासेस, बट आई विल रिकैपिचुलेट आल्सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द सिलेबस, राइट? तो आप लोग क्लास जो है टाइम पे आया कीजिए. न्यू स्टूडेंट से मेरा रिक्वेस्ट है कि काइंडली अटेंड द क्लास ऑन टाइम, राइट? ठीक है. तो टुडे जस्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द hydrostatic forces on the curved surface, right? Already I have discussed about the hydrostatic forces on the plane surface, right? ठीक है. The plane surface पे क्या होता है hydrostatic forces? याद है पीके? कुंडाल? Okay, tell me. In the classes of hydrostatic forces on the plane surface, I have discussed that how the pressure forces can be calculated, as well as how the center of pressure is calculated. What is center of pressure? What is the center of pressure? Do you know? Center of pressure is the point where the total hydrostatic force is supposed to be acting, right? ठीक है. वो ऐसा पॉइंट है जहां से टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस को हम एज्यूम करते हैं कि उस पॉइंट के थ्रू ही एक्ट करेगा, राइट? ठीक है. बट व्हेनेवर यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड? हाइड्रोस्टैटिक, देखो यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस, दैट इज द hydrostatic forces, that is equal to how much? That is rho g into a area into x bar, right? Where x bar is what? X bar is nothing. It is the center of gravity of the body below the water surface, right? A is what? A is the area, right? A is the area of the plate here, right? ठीक है. Of the body, and g is the acceleration due to gravity, and rho is the डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, और इसको W इंटू A इंटू एक्स बार से ही रिप्रेजेंट करते हैं. लेकिन इस कंडीशंस में देखो, when the forces are acting on a curved on an inclined surface, right? ठीक है. तो inclined surface के केस में मेरे पास ये इक्वेशन आया था, राइट? इस इक्वेशंस को हम क्या रिप्रेजेंट करते थे? इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंक्लाइनेशन, दैट इज इट इज यहाँ पे क्या है? थीटा का कोई वैल्यू नहीं है, राइट? थीटा यहाँ पे नहीं आ रहा, थीटा का टर्म नहीं आ रहा. दैट इज वी कैन से दैट FP is what? FP is independent of थीटा. इंक्लाइनेशन पे मेरा डिपेंड नहीं करता है प्रेशर फोर्स, राइट? ठीक है. बट व्हेन यू आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन द कर्व सरफेस, वी कैन अज्यूम हियर दैट we can see here that the pressure forces will depends upon the value of not theta. यहाँ पे भी डिपेंडेंट होगा, बट जस्ट लुक एट द फिगर हियर. यहाँ पे रिकैपिचुलेट हमने करा यहाँ पे, ठीक है. रिमेंबर ये रखना, आप लोग को याद रखना है, ठीक है. व्हाट इज द सेंटर ऑफ प्रेशर एंड व्हाट इज द प्रेशर फोर्स, हाउ मच द वैल्यू ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर, हाउ इट विल बी कैलकुलेटेड, राइट? ठीक है. तो यहाँ से देखते हैं फिर से हम, ठीक है, राइट? ठीक है. तो यहाँ देखिए, यहाँ पे look at this figure here. What is this? This is the free surface. This is the free surface of water, right? This is what? This is the free surface of water, right? ठीक है. This is the free surface. Am I right here? ठीक है. Consider this is the wall here. This is what? This is the wall here, and this is the curved surface here, right? ठीक है. And upon this I have to find the value of the force, how much the force will be there, right? ठीक है. Clear है? So how the forces can be calculated here? Look at the figure here, right? Is it clear? डिप्लोमा वाले आप लोग पढ़ के आए हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझेंगे, और नहीं समझेंगे
तो आप लोग पूछेंगे, राइट? ठीक है, तो हमने एज्यूम क्या किया, हमने एज्यूम किया एक एलिमेंटल एरिया, राइट? ठीक है, दिस इज द एलिमेंटल एरिया दैट इज डीए हियर, राइट? एंड inclination of this elemental area is theta with the horizontal x axis, right? This is the horizontal x axis and this is, suppose this is the y axis, right? Vertical y axis. Am I right here? ठीक है, just we are considering an elemental area, that is area DA. This is the DA area, right? This is the DA area on the curved surface, right? whose vertical projections, इसका vertical projections लेंगे, देखो ये DA area है, this is the DA area, this is the DA area upon which there is a forces acting on the surface and this forces is how much? This forces is DF. ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं हम कि टोटल फोर्स निकालने के लिए आइदर दैट फोर्सेस इज इंटीग्रेटेड थ्रू आउट द सरफेस, ये पूरा सरफेस पे हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, या दूसरा प्रोसेस क्या है, हम दूसरा प्रोसेस देखते हैं, हाउ द फोर्सेस कैन बी कैलकुलेटेड, राइट? ठीक है, तो यहां से अब ध्यान से देखिएगा, दिस इज द एलिमेंटल एरिया डीए, राइट? दिस इज द एलिमेंटल एरिया डीए which is at the theta angle with the horizontal, ठीक है, इसका इंक्लिनेशन क्या है, थीटा विद हॉरिजॉन्टल एक्सिस, राइट? हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, राइट? ठीक है, तो इसका दो प्रोजेक्शंस हम लेते हैं, राइट? फर्स्ट प्रोजेक्शंस इज व्हाट, इन द वर्टिकल प्लेन, दिस इज द वर्टिकल प्रोजेक्शन, राइट? एंड दिस इज द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, दिस इज वर्टिकल एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, राइट? ठीक है, so this area DA is making the angle theta with x axis, right? ठीक है, तो look at here, इसको आप क्या करोगे, इस एरिया को रिजॉल्व करोगे तो वर्टिकल कंपोनेंट में क्या हो जाएगा, the area will be how much, DA sin theta and horizontal component will be how much, DA cos theta. Am I right here? जैसा कि सपोज कि ये आपका ये बेस, ये दिस इज द हाइपोटेन्यूस है एंड दिस इज द बेस हियर एंड दिस इज द हाइट हियर, राइट? सपोज दिस इज एंगल थीटा, ओके, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ एज, सपोज, ठीक है, तो ये आपका बेस निकालना है, तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी हाउ मच, ए cos थीटा एंड दिस विल बी हाउ मच, दैट इज द हाइट या आपका जो इसको क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, जो भी है, ठीक है, दैट विल बी हाउ मच, एज साइन थीटा। सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, एरिया को भी हमने रिजॉल्व किया वर्टिकल कंपोनेंट एज वेल एज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे, राइट? ठीक है, कैन यू सी हियर, आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट, आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? यस ओके, सर। ठीक है, तो ओके, इस एरिया को हमने क्या किया, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में हमने क्या किया, रिजॉल्व कर दिया, राइट? ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि इस फोर्स, यहाँ पे आप निकाल लो फोर्स, राइट? ठीक है, इस ये प्लेन जो है, प्लेन सरफेस दैट इज वर्टिकल सरफेस, वर्टिकल सरफेस में हम फोर्स निकाल लेंगे, राइट? F into H, दैट इज द टोटल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द वर्टिकल सरफेस, ठीक है? यहाँ पे क्या लगेगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगा, वर्टिकल सरफेस पे क्या लगेगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगा, लेकिन जब हॉरिजॉन्टल सरफेस की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या लगेगा, वर्टिकल फोर्स लगेगा, एक भी फोर्स लगेगा, राइट? ठीक है, तो यहाँ देखो कि ये आपका डायरेक्शन हो गया हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का और ये हो गया आपका वर्टिकल फोर्सेस का, दैट इज एफ एच इज द वर्टिकल फोर्सेस, राइट? ठीक है, एंड व्हेन यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द रिजल्टेंट ऑफ दिस फोर्स, दैट इज द एफ आर, सपोज दिस इज द एफ आर, that is the resultant of the FH and FR, ठीक है, FH and FV, vertical force and horizontal force का resultant आप जो calculate करोगे, that will be equal to the total forces acting on the curved surface, that is the FP, that is the total pressure forces acting on the this curved surface. Can you find or not? Can you find or not? Can you find or not? This is the simplest process to find the total hydrostatic forces acting on the two-dimensional curved surface. Am I right or not? दो प्रोसेस है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल लो, वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लो, उसका रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, या आप क्या करोगे, थ्रू आउट इंटीग्रेट कर दोगे, तो इंटीग्रेशन प्रोसेस लेंदी है, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट निकालते हैं और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल लेते हैं फोर्सेस का, राइट? ठीक है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, दैट विल गिव्स यू द total pressure forces acting on the two-dimensional curved surface. Am I right? Am I right or not?
Yes, Am I sir. right or not? Okay. ठीक है, क्लियर है? Is it clear to everyone? I think. तो यहां से देखते हैं नेक्स्ट फिगर, राइट? ठीक है, दिस इज द फिगर हियर। यहाँ पे देखो, इस फिगर की हम बात करते हैं। तो हमने क्या ले रखा है यहाँ पे, दो प्लेन हमने ले रखा है, ठीक है। जैसा कि ऊपर फिगर में एक क्या था आपका, दिस एरिया इज व्हाट, दिस एरिया वाज डी ए साइन थीटा एंड दिस एरिया वाज व्हाट, डी ए कॉस थीटा। यही था एरिया ना, ठीक है, एलिमेंटल एरिया, राइट? ठीक है, तो अब ये जो वर्टिकल एरिया है, दैट इज द वर्टिकल एरिया, वर्टिकल एरिया एंड दिस इज द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो वर्टिकल एरिया की हम जब बात करते हैं, तो हाउ द फोर्सेस विल बी चेंजिंग। फोर्सेस क्या होता है, हॉरिजॉन्टल फोर्स का याद करो। हॉरिजॉन्टल फोर्स का इक्वेशन हमने क्या लिख रखा था, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, द फोर्सेस ऑन द हॉरिजॉन्टल सॉरी वर्टिकल प्लेन विल बी वेरीज अकॉर्डिंग टू द डेप्थ। ठीक है, जैसे जैसा कि डेप्थ बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, फोर्सेस विल बी या प्रेशर फोर्सेस विल बी वेरीज, राइट? ठीक है, तो force that is equal to nothing, it is the pressure into area, am I right? ठीक है, and how the pressure will be vary, pressure is rho g into x, rho g into x into area, am I right? am I right here? ठीक है, तो x यहाँ से देखो, यहाँ से वेरी कर रहा है, दिस इज द x है, सपोज दिस इज द x। ठीक है, अगेन ये आपका वेरी कर रहा है, x बढ़ते जा रहा है, x का वैल्यू गोज ऑन इंक्रीजिंग हियर, डाउनवर्ड्स हम जाते हैं तो इंक्रीज करते जाता है। तो प्रेशर फोर्स का वैल्यू क्या रहेगा, यदि x का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो प्रेशर फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या करेगा, इंक्रीज करता जाएगा। इसीलिए यहाँ पे दिखाया गया, यहाँ पे छोटा सा दिखाया गया, धीरे धीरे दैट मैग्नीट्यूड इज इंक्रीजिंग एज वी आर मूविंग टुवर्ड्स द डेप्थ। am I right? am I right? Already I have discussed, right? am I right or not? Is it clear to all of you? Is it clear to all of you or not? Yes, sir. Clear. ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो अब बताओ कि इसके पास एक रिजल्टेंट फोर्स लगेगा। देखो, दिस फोर्स आर वेरिंग फ्रॉम दिस, यहाँ तो यहाँ, ठीक है, यहाँ से दिस मैग्नीट्यूड टू दिस मैग्नीट्यूड, दिस फोर्स इज वेरिंग, राइट? ठीक है, हाउ द मैग्नीट्यूड विल बी कैलकुलेटेड, दिस इज द मैग्नीट्यूड, दैट इज द रिजल्टेंट फोर्सेस, दैट इज द एफ H. This is the horizontal forces that is acting on the vertical surface, right? Okay, and this is what? This is the point of application of the resultant forces. Okay, and what is the point of application? It is nothing. It is the center of pressure. ठीक है, सेंटर ऑफ प्रेशर के थ्रू ही टोटल रिजल्टेंट फोर्सेस एक्ट करेगा। ठीक है, क्लियर है? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वर्टिकल फोर्स का कंसेप्ट समझ में आया? वर्टिकल सरफेस का समझ में आया कंसेप्ट, इसमें कैसे फोर्स एक्ट करेगा, राइट? एम आई राइट और नॉट? प्लीज टेल मी, एम आई राइट और नॉट? Yes. आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? Yes, sir. ओके, न्यू स्टूडेंट प्लीज टेल मी। Yes, sir. ओके, वेरी गुड। तो अब यहां से हम इसको देख लिए हमने, वर्टिकल फोर्स की बात कर ली। अब हॉरिजॉन्टल फोर्स की बात करते हैं। हॉरिजॉन्टल फोर्स की हम बात करते, सॉरी, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हम बात करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे क्या लगेगा, दिस इज द हॉरिजॉन्टल सरफेस, राइट? एंड अपॉन दिस व्हिच फोर्सेस इज एक्टिंग, द वर्टिकल फोर्सेस इज एक्टिंग, दैट इज एफ बी। एफ बी इज एक्टिंग हियर, राइट? ठीक है, एफ बी इज एक्टिंग हियर, राइट? सपोज दिस इज हाउ मच, दिस इज द फ्री वाटर सरफेस, राइट? ठीक है, और यहां से इसका हाइट कितना है, सपोज डेप्थ इज व्हाट, हाउ मच, दिस इज, सपोज दिस इज द h, suppose this is the h is the height or depth of the surface, am I right here? ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स क्या लगेगा मेरे पास, फोर्स लगेगा दैट इज इक्वल टू प्रेशर फोर्सेस, दैट इज वर्टिकल फोर्सेस is equal to how much, pressure into area, am I right? pressure into area of this surface, am I right? ठीक है, अब जो प्रेशर होगा, प्रेशर यहाँ पे क्या आ जाएगा, रो इंटू जी इंटू एच। ठीक है, h is not varying, h is constant, right? ठीक है, यहाँ पे जो आपका h है दैट इज कांस्टेंट, राइट, इनटू a। ठीक है, तो h यहाँ पे कांस्टेंट है, तो जो आपका प्रेशर का जो वैल्यू होगा दैट विल बी
सेम, राइट, थ्रू आउट द सरफेस। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे क्या होगा, इसका वैल्यू जो होगा प्रेशर का सेम होगा, राइट, ठीक है, प्रेशर फोर्स का वैल्यू सेम होगा, राइट, ठीक है। तो इसका रिजल्टेंट कहाँ लगेगा, इसका रिजल्टेंट मिडिल ऑफ द प्लेट, ठीक है, इसका जो रिजल्टेंट होगा मिडिल ऑफ द प्लेट पे लगेगा, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ पूरा प्रेशर जो है पूरा प्लेट पे कांस्टेंट है, बट इन द केस ऑफ वर्टिकल surface or vertical plane, we can see here that the maximum pressure will be at the bottom surface and the minimum pressure will be at the top surface of the top portion of the vertical face or vertical surface. Am I right? ठीक है, and this is varying linearly, right? ठीक है, x vary करेगा तो प्रेशर भी vary करेगा, right? ठीक है, am I right? क्लियर है? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ओके, ठीक है, तो यहाँ पे हमने समझ लिया। अब जस्ट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट हाउ द फोर्सेस कैन बी कैलकुलेटेड ऑन द वर्टिकल सरफेस एज वेल एज ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है। यहाँ से ध्यान दीजिए, ये फिगर हम यहाँ पे आया, पेज नंबर 2, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल, नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द horizontal forces. How the horizontal forces can be calculated? Suppose this is what, this is our vertical plane, ठीक है, this is our vertical plane। vertical plane पे क्या लगेगा मेरा, horizontal force लगेगा, am I right? ठीक है, vertical plane पे क्या लगेगा, horizontal forces लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, vertical forces, that will be equal to how much, that will be equal to rho g into x into area, x is varying here, ठीक है, तो यहाँ पे vary करेगा, right, ठीक है, and these forces will acting on the resultant of the horizontal forces is will be passed through the center of pressure, already I have discussed, right, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं, suppose कि we are taking the elemental area, suppose this is the elemental area dA, this is the elemental area, how much, this is the elemental area dA, upon which we are going to calculate the forces, and the forces will be how much, that forces will be how much, that forces will be D into FH, ठीक है, D into FH, horizontal forces on the this element, am I right here, ठीक है। तो DF into sin theta, ठीक है, that is the forces। यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे DF क्या है, this is the DF, this is the DF is acting on the curved surface, ठीक है, DF is acting on the curved surface। तो आपका जो horizontal forces होगा, तो horizontal forces क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी से, horizontal forces हो जाएगा DFH हो जाएगा, and vertical forces क्या होगा, DFV होगा on the elemental area of the curved surface, right, ठीक है। तो हम बात करते हैं horizontal forces की, horizontal forces में DA एलिमेंट पे कितना फोर्स लगेगा, DFH, ठीक है, और DFH को हम क्या लिख सकते हैं, DF, ठीक है, DF is what, DF is nothing, it is the forces acting on the curved surface, curved surface पे मेरा कितना फोर्स लग रहा था एलिमेंटल एरिया में, ठीक है। तो DFH हम निकाल लेंगे DF into sin theta, can we write or not, can we write or not, look at this figure, ठीक है। DF को हमने क्या किया, रिजॉल्व में किया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट में, ठीक है। तो DFH is what, DFH is nothing, it is the vertical component, forces acting on the vertical component on the elemental area DA, ठीक है, that is given by DF into sin theta, right, ठीक है। और DF को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, DF is nothing, pressure into DA, pressure into DA, am I right, pressure into DA area, right, ठीक है, into sin theta, right, ठीक है। and pressure कितना है, pressure अभी जस्ट हमने कहा था rho gx is the instant pressure into DA into sin theta, right, ठीक है, DA into sin theta, क्लियर, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक समझ लिए, ठीक है। तो rho g is nothing, it is the W, it is nothing, it is the specific weight, rho g is what, rho g is स्पेसिफिक वेट, ठीक है। तो W इंटू यहाँ पे आपका आ गया X,
this is the XL. And dA sin theta is what? dA sin theta already I have discussed that. dA sin theta is nothing, it is the projected area in the vertical plane. एक एरिया हमने लिया था कर्व सरफेस का, ठीक है, दिस इज द एरिया, यहाँ पे हमने वर्टिकल सरफेस पे प्रोजेक्शन किया है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे प्रोजेक्शन किया, इसी एरिया का प्रोजेक्शन हमने लिया, एक वर्टिकल कंपोनेंट एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, राइट हियर। ये हो गया वर्टिकल प्लेन पे वर्टिकल एरिया हो गया, और ये हो गया हॉरिजॉन्टल एरिया, राइट, ठीक है। तो दिस इज द एरिया that is a projected area in the vertical plane, that is the dA sin theta. Clear? Clear or not? Clear or not? Clear, sir. Is it clear or not? Okay, ठीक है। यदि किसी को कोई डाउट है तो बार बार पूछो, ठीक है। तो कैन बी राइट हियर FH is nothing, FH is equal to hydrostatic forces on the projected area of the curved surface in the vertical plane. FH is what? FH is hydrostatic force on projected area of curved surface in the vertical plane. किसी भी आपका जो आपका कर्व सरफेस है उसका जो प्रोजेक्टेड एरिया होगा that will be in the vertical plane. The total force is FH, ठीक है, that is nothing, it is the hydrostatic forces, ठीक है, hydrostatic forces acting on the vertical plane, right? And what is vertical plane? It is nothing, it is the projected area of the curved surface, ठीक है। तो FH हमने निकाल लिया, FH का मैग्नीट्यूड यही होगा, this is the magnitude of FH, ठीक है। देखो यहाँ फिर से नीचे आते हैं, तो इसका फाइनल मैग्नीट्यूड हम देखेंगे, फाइनल मैग्नीट्यूड की हम बात करते हैं, ठीक है। The point of application of the horizontal force is the center of pressure, right? The point of application of the horizontal force is the center of pressure in the vertical plane, ठीक है। तो हमने कहा था ना कि जो वर्टिकल प्लेन में जो आपका जो भी फोर्सेस आ रहा है that is what? That is the FH, that is the FH, ठीक है। तो total resultant force is what? Total resultant force acting on the vertical plane. वर्टिकल प्लेन पे कितना आ रहा है? FH आ रहा है, ठीक है, यहाँ से FH आ रहा है, this is the forces, and this resultant forces is acting on how much? This FH is acting on which point? The point of application is what? Point of application is known as center of pressure. Already I have discussed, right? ठीक है, center of pressure. So can we write here? This is the FH, value of FH is nothing, it is the W into X into AP. AP is nothing, it is the projected area in the vertical plane, ठीक है। तो वर्टिकल प्लेन वाला जो एरिया आएगा उसको मल्टीप्लाई कीजिए दिस टर्म से, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ FH, vertical horizontal component of the force, ठीक है। Am I right? Am I right or not? Is it clear to all of you? Is it clear to all of you? Okay, ठीक है। So this is the process how we will find the value of horizontal forces, right, on the vertical plane, right? ठीक है। Now we are going to discuss how the vertical forces can be find on the horizontal force, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था, नेक्स्ट हम इसमें आते हैं। तो यहाँ पे देखो ये क्या है मेरे पास, ये आपका DA एलिमेंटल एरिया है, दैट इज ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये है ना हॉरिजॉन्टल प्लेन, इसका जो प्रोजेक्शन लोगे आप हॉरिजॉन्टल प्लेन, सपोज दिस इज द DA एरिया, ठीक है, एक्टिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, और हॉरिजॉन्टल प्लेन पे कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है यहाँ पे? FB, ठीक है, दैट इज द DFB, राइट, DFB एलिमेंटल फोर्सेस एक्टिंग, राइट, ठीक है। तो DFB को क्या लिख सकते हैं? DF cos थीटा, जैसा कि हमने ऊपर में लिखा था DF sin थीटा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? DF cos थीटा, राइट। DF cos थीटा को DF क्या होता है? रो जी x into DA, दिस इज द DF, राइट, ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ DF into cos थीटा, राइट, ठीक है। अब रो जी इज व्हाट? रो जी इज नथिंग, इट इज W, और x को हटा दे, DA cos थीटा, एम आई राइट है? DA cos थीटा, राइट, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, DA cos थीटा मेरे पास क्या है? DA cos थीटा ये प्रोजेक्टेड एरिया है, क्लियर? DA cos थीटा इज दिस इज द प्रोजेक्टेड एरिया, ठीक है। एंड x ये DA cos थीटा है, इसको x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या दिखा रहा है यहाँ पे? ये DA cos थीटा इनटू दिस इज द x, राइट, हाइट ऑफ और डेप्थ ऑफ दिस सरफेस, राइट, ठीक है। तो ये टोटल क्या हो गया? दिस विल गिव्स यू द टोटल क्या हो गया? एरिया इनटू हाइट क्या हो जाता है? दैट इज विल गिव्स यू द वॉल्यूम, एम आई राइट? एम आई राइट और नॉट?
Yes, sir. दैट विल गिव यू द वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये स्टेटमेंट देखिए यहाँ पे, ठीक है, W into वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड कॉलम अबव द कर्व सरफेस अप टू फ्री सरफेस। ठीक है, so this is what this term is nothing, it is the volume of the liquid column above the curved surface up to free surface। ठीक है, तो this is the volume। ठीक है, यह वॉल्यूम है कर्व सरफेस पे, ये वॉल्यूम है। ठीक है, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द वाटर कॉलम above this surface, curve surface up to how much, कहां तक रहेगा, फ्री सरफेस तक रहेगा। am I right, फ्री सरफेस तक रहेगा। ठीक है, so this volume multiplied by the W, that is the rho into G, that will gives you the value of the FV। ठीक है, that will gives you the value of the FV। ओके, तो वॉल्यूम निकाल लो, वाटर कॉलम का वॉल्यूम आप निकाल लीजिए और रो इनटू जी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ द एफवी, दैट इज द वर्टिकल फोर्सेस, कंपोनेंट ऑफ द वर्टिकल फोर्सेस। हेंस यहाँ पे देखिए, हेंस we see that the vertical component of forces on the curved surface is equal to the weight of the liquid। ठीक है, यहाँ पे ये स्टेटमेंट ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि hence we can see that vertical component of forces, that is Fv, that will be equal to the weight of the fluid contained by the curved surface taken up to its free surface, right। ठीक है, ये वेट है जो वॉल्यूम का, जो आपका जो ये आपका लिक्विड कॉलम है, उसका वेट हम इक्वल कर देंगे अप टू and okay, and these forces, okay, these forces, that is the FV will act on the center of gravity of the corresponding bed, right। हाँ बोलो, फिर से रिपीट कर दीजिए, बीच में आवाज कट गया। अच्छा ठीक है, तो ये आपका ये स्टेटमेंट क्या बोलता है कि यदि हम कर्व सरफेस की हम बात करते हैं, तो कर्व सरफेस पे हमने क्या निकाला, कर्व सरफेस में हॉरिजॉन्टल फोर्सेस निकालने के लिए हमने क्या किया, W into AP, that is the vertical component of curved surface into X, right। ठीक है, right, center of pressure, right। ठीक है, this is the what, this is the vertical horizontal component of the forces, can we calculate it like this, right। ठीक है, अब आपको निकालना है क्या, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस पे क्या निकालना, वर्टिकल फोर्सेस, राइट, ऑन द दिस सरफेस, राइट। ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट यहीं पे आया। हमने क्या किया कि इसको आपका सॉल्व किया बाय इंटीग्रेटिंग द एफबी, राइट। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफबी, टोटल वैल्यू ऑफ एफबी, that will be nothing, it is the W times the volume of the liquid column above the curved surface। ये जो कर्व सरफेस है उसके ऊपर जो भी वाटर कॉलम का वॉल्यूम है, वाटर कॉलम का जो भी वॉल्यूम है, ओके, इस वॉल्यूम को क्या करोगे, रो जी से मल्टीप्लाई कर दोगे, दैट इज नथिंग, दैट इज द वेट। ठीक है, ये जो सरफेस है, इस पे जितना भी वाटर का वेट जो है, ये सरफेस है, और ये मान लो कि ये फ्री सरफेस है, राइट, दिस इज द फ्री सरफेस ऑफ वाटर, राइट। ठीक है, तो इसके ऊपर जो भी वाटर कॉलम का जो वेट आएगा, जो भी वाटर कॉलम का जो वेट आएगा, दैट विल बी इक्वल टू द एफवी। ठीक है, तो वर्टिकल फोर्सेस क्या होता है, किसी भी सरफेस पे क्या होता है, उसके ऊपर जो भी वेट रखा है वही उसका फोर्स हो गया, वर्टिकल फोर्स। समझ में आ रही बात। ठीक है, किसी भी सरफेस के ऊपर जो फोर्स रखा है, that will gives you the value of the force, and that force is acting on the center of gravity of this column, this liquid column। am I right, क्लियर है कि नहीं है, is it clear or not? क्लियर है सर। ओके, वेरी गुड। तो आप लोग इसको हम शेयर कर देंगे और कुछ स्पेशल केसेस को हम डिस्कस करेंगे क्लास में। तो अभी टाइम होने वाला है, तो यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज आई एम गोइंग टू फिनिश द क्लासेस। ललित सर मांगे अभी, संदीप सर पास हो। ओके, इज दैट क्लियर और नॉट?
देखो वर्टिकल फोर्सेस और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस समझ में आया, और द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस फोर्सेस कैन बी कैलकुलेटेड। बीरेन सोरेन, कुणाल, पीकेश, रघुवंश, रवि, रवि कुमार, Yes, sir. Yes, sir. ऑल ऑफ यू, आप लोग ऐसा स्टडी कीजिएगा बुक, और डिप्लोमा वाले ये सब जानते हैं, करते हैं कि जानते होंगे, और यदि कोई डाउट है तो पूछिएगा आप लोग, ठीक है। जस्ट आई एम गोइंग टू शेयर द नोट्स, ठीक है, और उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और डिस्कस करेंगे इसके रिगार्डिंग प्रॉब्लम करेंगे, राइट। कैसे आप गेट डिजाइन करोगे, हाइड्रोस्टैटिक जो डैम में जो गेट होता है, दैट विल बी डिजाइन अकॉर्डिंग टू दिस स्टोरी, राइट। ठीक है, तो थैंक यू, वी आर गोइंग टू क्लोज द सेशन राइट नाउ।